Assalamu alaikum, my dear students. Today, this is our lecture number 12 regarding grammar and vocabulary for class 12th. All this is applied. Main is given in your textbook at the back of your different topics. Today we are discussing past progressive tenses and simple past. The exercise given at page number 58, we solved it in the previous lesson. Today it is page number 59 under the title of study skills. Let I read it for you. A. Complete each of the following sentences suitably to define the underlined idioms. Consult dictionary if necessary. The first one has been done as an example for you. First one is, if you are caught napping. It is solved for you. If you are caught napping, something happens to you for which you are not prepared when it happens. मतलब ये है कि अगर ये लिखा होगा किसी जगह एज एन इडियम कि यू आर कॉट नैपिंग, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज रूनुमा होने वाली है जिसके लिए या हुई है जिसको फेस करने के लिए, जिसको डील करने के लिए आप तैयार नहीं हैं. जब ये हो रही है. इसी तरह से इफ समथिंग इज नेसेसरी इविल, इफ यू हैव had a narrow escape, you risk your neck when you dash. If you have a close call, when you dash, you have a sword of Damocles hanging over your head. If something that such alarm bells ringing, if a person bites the bullet, when you dash, you burnt your bridges. If you jump the gun, you dash. मतलब जो idioms मैंने पढ़ी, इनको आप क्या करना है कि आपको देखना है कि इनका मतलब क्या हो सकता है, ये हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं. पहली वाली तो यहाँ पर सॉल्वड ही है. यानी कॉट नैपिंग का मतलब है कि जब ऐसी सिचुएशन जब अमल में आती है जिसको फेस करने के लिए आप तैयार नहीं हैं. इसी तरह से दूसरी है नेसेसरी इविल. नेसेसरी इविल, ठीक है. इसको हम क्या कहेंगे? नेसेसरी इविल को हम कहेंगे कि ये एक अनप्लीजेंट या हार्मफुल सिचुएशन होती है. अनप्लीजेंट सिचुएशन. अनप्लीजेंट सिचुएशन या हार्मफुल सिचुएशन. इसी तरह से नैरो एस्केप. नैरो एस्केप का मतलब है you had a brush with death but you escaped. नैरो एस्केप ये है दूसरी. अब ये तीसरी, नैरो एस्केप. narrow escape. You had a brush with death, but you escaped. You had a brush with death,
but you escaped. यानी आपने करीब करीब मौत का सामना कर दिया मगर आप बच निकले, ये इसका मतलब है। इसी तरह से you risk your neck, you risk your neck चौथी है, you risk your neck you risk your neck। इसका मतलब है you are doing something that's very dangerous, you are doing something that's very dangerous। आप एक ऐसी चीज कर रहे हो जो बहुत ही खतरनाक है आपके लिए। जब ऐसी सिचुएशन हो तो इसका इडियम बनता है यू रिस्क योर नेक। इसी तरह से ए क्लोज कॉल, ए क्लोज कॉल, फोर्थ था, अब फिफ्थ क्या है, ए क्लोज कॉल। क्लोज कॉल है, इट्स वेरी नियर टू बीइंग एन एक्सीडेंट, इट्स वेरी नियर टू being an accident, मतलब करीब था कि एक हादसा हो जाता, एक अफसोसनाक वाक़ा हो जाता, मगर किसी वजह से आपने इसको अवॉइड कर दिया। जब ऐसी सिचुएशन हो तब इसको हम इडियमेटिक इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज क्लोज कॉल। sword of Damocles या Damocles, sword of Damocles, इसका मतलब क्या हो सकता है, ये कौन सी मीनिंग हमें कन्वे करता है। ये है a danger looming large on your head, a danger looming large on your head, your head। जब आपके सर पे कोई खतरा मंडला रहा हो तब ये सिचुएशन बनती है, ये इडियम हम इस्तेमाल करते हैं, sword of Damocles। इसी तरह से sets alarm bells ringing, sets alarm bells ringing। सेवंथ है sets alarm bells, sorry, bells ringing। ये हमें क्या मैसेज
कन्वे करती है ये इडियम? इट टेल्स यू अबाउट द डेंजर और क्राइसिस अहेड. A crisis ahead. Crisis ahead. सीधे अल्फाज में लिखूंगा मैं. एक खतरा जो बिल्कुल करीब है, एक प्रेडिकामेंट सिचुएशन जो है, नागवार सूरत हाल जो है बिल्कुल करीब है. दैट इज सच अलार्म बेल्स रिंगिंग. इसी तरह से 8वां है bites the blood. Bites the blood. Blood. Bites the blood means he has to accept responsibility much against his will. कोई काम कोई करना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी उसे मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ता है, इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ती है. has to accept a responsibility much against your will. ठीक है, much against your will. इसी तरह से 9वां है burnt your bridges. burnt your bridges का मतलब है you have left no escape route out of a difficulty. अगर आपके पास कोई मुश्किलात है, आपने खुद ऐसा काम कर दिया है कि आपको वहां से बाहर आने का कोई मौका मौजूद नहीं है, कोई रास्ता मौजूद नहीं है, इसका मतलब है burn the bridges. burn your bridges. ठीक. 9वां है you have left no escape route out of difficulty. You have left no escape route out of a difficulty. ठीक, out of difficulty. नेक्स्ट है lost. लास्ट है if you jump the gun. if you jump the gun, इसका मतलब हो गया कि you do something before time. आपने कोई काम कर दिया है वक्त से पहले, अभी इसका वक्त मौजूद नहीं था. you do jump the gun. You do something before time. Do something before time. ठीक है. अब जो सेंटेंसेस दिए गए हमारे, इनमें इसका प्रॉपर जो इडियम है ब्लैंक्स में हमने फिल कर दी हैं. पहले वाले को देख लेते हैं. Although examination is upset me, I am ready to admit they are a necessary evil. हालांकि एग्जाम्स अनप्लीजेंट हैं हमारे लिए, हार्मफुल सिचुएशन है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हमें एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इसको नेसेसरी इविल कहते हैं.
I'm not prepared, risk my neck in trying to help him run away from the hostel. Risk my neck means if you have brushed with death but you escape it, जैसा कि इसका मीनिंग में हमने बता दिया, यानी I'm not prepared in trying an unpleasant and harmful situation. फर्स्ट वाले का है a necessary evil, दूसरे का है an unpleasant and harmful situation. risk my neck, यानी ऐसी सिचुएशन जो अनप्लीजेंट है, जो हार्मफुल है, इसको मुझे कबूल करना है. इसका मतलब यह है कि आपने यू हैव रिस्क योर नेक. थर्ड है the pilot managed to eject before the plane crashed, but it was a narrow escape. थर्ड वाला है it was a narrow escape. narrow escape का मतलब है you had a brush with death but you escaped. आपको मौत का सामना करना पड़ा लेकिन आप बच गए. इसी तरह से the goalkeeper was dash and the ball went in. caught napping मतलब वो हालात से बेखबर था, खेल से बेखबर था, अपने ख्यालों में खो चुका था, बाल गोल में चली गई. He had just got out of the car when the petrol tank blew up. It was a close call. वो गाड़ी से अभी बाहर आ चुका था, पेट्रोल टैंक का धमाका हो गया. क्लोज कॉल, एक बहुत नजदीकी हादसे से वो बच गया, इसको क्लोज कॉल कहते हैं. The revolt of 1857 failed because Mangal Pandey of Meerut dash and started the revolt 3 days yesterday jumped the gun. मंगल पांडे ने पहले ही ऐसा कुछ कर दिया जो इसे नहीं करना चाहिए था. इसका मतलब यह है कि जंप्ड द गन, अपने आप को क्राइसिस में डाल दिया, डेंजर में डाल दिया. इसी तरह से सिक्स्थ है यू लिव विथ dash hanging over your head. Sword of Damocles hanging in your head. खतरे की घंटी, खतरे की तलवार आपके सर पर लटक रही है. I hate being asked to work late hours, but I suppose I'll just have to bite the bullet. Bite the bullet का मतलब ये है कि आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी है, अगर आप इसे नापसंद करते हैं, आप इसे नाखुश. नाइन्थ है द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ द neo-Nazis has set alarm bells across Europe. खतरे की घंटी, खतरे का के हालात पैदा कर दिए पूरे यूरोप में. इसी तरह से द सीनियर ऑफिसर हैड ऑलरेडी burnt his bridges with chief minister by publicly criticizing him. अपने लिए हालात को मुश्किलात बना दिया है, अब बाहर आने का रास्ता नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर से इसने हालात खराब कर दिए हैं, इसको क्रिटिसाइज कर दिया है और कुछ. तो ये हमारा जो ग्रामर पोर्शन है या वोकैबुलरी का सेक्शन है या स्टडी स्किल्स है, जो कि हमारे लेसन द स्नाइपर में दिया गया के पीछे दिया गया था, इसको हमने आज कंप्लीट कर दिया. तो नेक्स्ट लेसन में हम लेसन नंबर 8 द लेटर ए
जो क्रिस्टी ब्राउन ने लिखा है, इसके पीछे क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं. This is enough for today. Have a good day. Thank you very much.